So, hello everyone. This is another question important for CBSE Board 25 Maths. स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में आ सकता है और ये क्वेश्चन चैप्टर सर्कल्स पर बेस्ड है। चैप्टर सर्कल में भी ना एक एग्जांपल नंबर 3 है, तो यू विल सी कि दिस क्वेश्चन इज प्योरली रेप्लिका ऑफ दैट क्वेश्चन, दैट एग्जांपल नंबर 3। इसमें भी हमें लेंथ ऑफ PA निकालनी है एंड PA happens to be the tangent. Now the question says that there is a circle and उसकी chord दी हुई है AB. AB is the chord of that particular circle and उसकी length हमें दी है, AB की length is 9.6 centimeter. And the circle is given with center O, and with center O, radius is given as 6 centimeter. Right? So tangents draw हुई है A पर, tangent हमने draw किया है at A and at B. These tangents, they intersect at point P and we need to find the length of PA, so tangent from external point. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं OP भी ज्वाइन कर दूंगी। तो मेरे पास इसमें जो आएगा, इसमें आएगा ज्वाइन OP और ये ज्वाइन OB। हम लोग OB को भी ज्वाइन कर देंगे, राइट? तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कॉर्ड का एंड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट, इसको मैंने R नेम दे दिया, ये पॉइंट मैंने R लिया। Now to begin this question, because this question I think will come for 5 marks and if it comes for 5 marks, आपको एक तो first 2 steps इसके करने पड़ेंगे. The first step is to prove triangle OAP is congruent to triangle OBP. बहुत easy है prove करना. Triangle OAP congruent to triangle OBP. तो इसमें मैं लूंगी OA is equal to OB because that is the radii. And then I have OP is equal to OP because that is common. And the third thing I will have is AP is equal to BP because they are tangents from external. So this is the first step we need to do to circle are equal in length. So I'll prove triangle OAP is congruent to triangle OBP और अगर आप check करोगे this is the SSS congruency rule. Now why to prove? Because then from here I will take this angle 1 is equal to angle 2. So I am basically saying angle OPA is equal to angle OPB. CPCT ले लेंगे ये कि हमने triangles को congruent किया and then we take this. From here the second step before calculations, ये दो steps करने बहुत जरूरी हैं. We will now prove triangle ARP is congruent to triangle BRP. तो उसमें तो मेरे पास यही आएगा AP is equal to BP and then we have RP equals to RP common and angle 1 equal to angle 2 जो हमने ये OPA OP proved above किया है, ठीक है? तो अब ये क्यों जरूरी है वो क्लियर हो जाएगा, बट पहले ये दो स्टेप्स हमें याद रखने हैं और ये हम प्रूव कर रहे हैं SAS के साथ, राइट? नाउ फ्रॉम हियर जब हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, नाउ दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल हेल्प मी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. तो हमें ये क्यों प्रूव करना था ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट, उसका रीजन अब क्लियर होगा कि हमने इन दो स्टेप्स को क्यों किया है. बिकॉज नाउ द थिंग्स वी विल गेट एज रिजल्ट आर इम्पेरेटिव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो पहले हम लेंगे AR इज इक्वल टू BR. ट्राइंगल्स क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो AR BR CPCT के थ्रू इक्वल हो गए. दैट मीन्स R इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इससे मेरे पास AR की लेंथ आ जाएगी because मुझे पता है AB is 9.6 centimeter. Therefore, AR will be half of 9.6, which is 4.8 centimeter. उसके बाद I will also take angle ARP is equal to angle BRP. ये भी CPCT आ गया. And because AB is a straight line, so angle ARP plus angle BRP is equal to 180 because of linear pair. And if we use these two results, we'll get angle ARP is 90 degree. तो सिर्फ R को मिड पॉइंट और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये शो करने के लिए हमने ये फर्स्ट 2 स्टेप्स किए हैं. फॉर 5 मार्क्स आई विल राइट दीज 2 स्टेप्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माय क्वेश्चन. अब जो हम करेंगे वो हमारी सारी कैलकुलेशन पार्ट है which will help us to solve this question to get the answer which is length of PA. तो जब हमने इसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया, यहाँ पर एंगल I'll erase
द क्वेश्चन है, क्योंकि ये दो चीजें हम कर चुके हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी पीछे प्रूव किया, इट सेड दैट AR is equal to BR is equal to 4.8 centimeter and AB is perpendicular to OP at R. These are the two results which I proved by proving triangle OAP congruent to triangle OBP and also triangle ARP congruent to triangle BRP. अब हम क्या करेंगे? We also know that OA is perpendicular to AB, which we say radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Radius and tangent are perpendicular at point of contact. तो यहां पर भी 90 डिग्री आता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देयर आर 3 राइट एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड, व्हिच इज ट्रायंगल ORA, ये भी राइट ट्रायंगल है, triangle ARP, this is also a right triangle, and the third one is triangle OAP. तो इसमें 3 राइट ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। इन तीनों में ही हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स, राइट। तो पहले हमने प्रूव किया AB परपेंडिकुलर टू OP, AR इक्वल टू BR। उसके बाद 3 राइट ट्रायंगल्स, तीनों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है टू गेट द वैल्यू ऑफ AP। हाउ? पहले सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ORA लेते हैं, जिसमें आई नो OA स्क्वायर is equal to AR square plus OR square. So OA is the radius 6 square, AR हमने अभी निकाला है 4.8 का होल स्क्वायर, OR की वैल्यू आ जाएगी, OR स्क्वायर विल बी 36 माइनस 4.8 का करोगे तो 23.04 आ जाएगा। OR इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा विच इज 12.96, तो OR की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई गेट द वैल्यू ऑफ OR विच इज 3.6 सेंटीमीटर। अब दूसरे वाला ट्रायंगल लेते हैं जो कि है ARP। अब ARP में राइट एंगल लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल के हिसाब से, तो AR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। सो AR हम निकाल चुके हैं वैल्यू, दैट इज 4.8 का होल स्क्वायर। अब यू रियलाइज ना हमारे पास RP की वैल्यू है ना AP की, तो यहाँ पर आई टेक RP एज X सेंटीमीटर, AP एज Y सेंटीमीटर। इसको X ले लिया, इसको Y, सो आई पुट हियर X स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा Y स्क्वायर। कुछ नहीं कर सकते। तीसरा ट्राइंगल जो है OAP, राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर विल गिव मी OP स्क्वायर। OA तो हमारे पास 6 है, 6 स्क्वायर, AP हमने AP को Y लिया है तो Y का होल स्क्वायर, एंड OP, दिस OP, right, this OP, क्योंकि OR we found out as 3.6 and RP we've taken X, तो it will be 3.6 plus X का होल स्क्वायर, right। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई इन टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर y स्क्वायर की वैल्यू विच इज 4.8 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आई रिप्लेस हियर, तो ये आ जाएगा 36 प्लस 4.8 का होल स्क्वायर हम निकाल चुके हैं विच इज 23.04 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 3.6 का होल स्क्वायर इज 12.96, देन x स्क्वायर प्लस 2ab विच विल गिव मी 7.2x। यहाँ पर मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर 23.04 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वैल्यू सब्सटीट्यूट की है। तो जब इसको सॉल्व करते हो एक्स स्क्वायर कैंसिल विच इज गुड फॉर अस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रही है, तो आपके पास आ जाएगा 7.2x इज इक्वल टू 46.08। फर्दर सॉल्विंग में x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एज 6.4 सेंटीमीटर। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट टू फाइंड द लेंथ ऑफ x, वी नीड टू फाइंड लेंथ ऑफ AP। तो अब जो x की वैल्यू निकाली है विल पुट हियर टू गेट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हियर वुड गो हियर, सो 23.04, x की वैल्यू 6.4 का होल स्क्वायर विल गिव मी y स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे 23.04 6.4 का होल स्क्वायर इज 6.4 का होल स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो इट विल गिव मी
40.96 and that will be equal to y square. y square इन दोनों को ऐड करते हैं तो will give me 64 और जिससे मेरे पास y की लेंथ आ जाएगी 88 centimeters. Square root of 64 will be 8 centimeter. So this is one way to solve this question using Pythagoras theorem. Now this question can also be solved using similar triangles. Similar triangles करके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होता है और इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आती इसमें. So if you want, I can explain that method also. तो सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें क्या करना है, हमें ये दो रिजल्ट्स तो प्रूव करने ही हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड ए आर इक्वल्स टू बी आर, वो तो हमें प्रूव करना है. नाउ वी टेक सिमिलैरिटी बिटवीन दीज 3 राइट ट्राइंगल्स. जो हमने 3 राइट ट्राइंगल्स लिए थे इनमें सिमिलैरिटी रूल हम अप्लाई करेंगे. वो कैसे, देखो 3 ट्राइंगल्स है हमारे पास. ट्राइंगल ORA जिसमें हमने सारी साइड्स निकाल ली है. फिर I have triangle ARP and I have triangle OAP. तो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल OAP है, तो ट्राइंगल ORA this one is similar to triangle O कॉमन हो गया. यहाँ पर R पे राइट एंगल है, यहाँ पर A पे राइट एंगल हो गया, तो OAP. ठीक है, बाय एंगल रूल. O is the common angle, R 90 डिग्री और यहाँ पर A 90 डिग्री. सो बाय एंगल ORA is similar to OAP. और ऐसे अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो एंगल ARP है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAP. ठीक है, ट्राइंगल ARP इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAP. यहाँ पर भी A रूल है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं. दोनों में एंगल P कॉमन है, राइट, एंड एंगल R यहाँ पे 90, एंगल A यहाँ पे 90. तो फ्रॉम दिस रूल what follows is that triangle ORA is similar to triangle ARP. ORA और ARP भी आपस में सिमिलर है. तो अगर आप साइड्स की रेशियो लेते हो ना इसमें, देन यू विल सी द क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया. तो मेरे पास है OR अपॉन AR इज इक्वल टू AR अपॉन RP इज इक्वल टू OA अपॉन AP. ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें. OR हमने निकाला था 3.6, अगर पिछली वाली कैलकुलेशंस याद होगी, 3.6 सेंटीमीटर. AR 4.8 सेंटीमीटर है. AR अगेन 4.8 सेंटीमीटर और अब हमें निकालना है RP को हमने x लिया था. OA अगेन इज 6 और AP निकालना है एज y. तो अगर हम ये सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल याद कर लेते हैं तो ये चीज सॉल्व करना देखो कितना आसान हो गया है. हमें डायरेक्टली y की वैल्यू निकालनी है, हम x को बाईपास कर सकते हैं. सो 3.6 बाय 4.8, ये रेशियो 3/4 आती है और यहाँ से 6/y हो जाएगा. यू विल सी y डायरेक्टली आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर. मतलब दिस क्वेश्चन जो इतनी कैलकुलेशंस वाला था जस्ट गेट सॉल्व्ड इन लाइक 2 मिनट्स. 5 मार्क्स का क्वेश्चन, लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं और 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है. ठीक है, सो ट्राई यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स रूल. आपने क्या करना है, 3 राइट ट्रायंगल्स हैं, एक बड़ा, उसके बीच में 2 छोटे ट्रायंगल्स हैं. सो दोनों छोटे ट्रायंगल्स बड़े वाले को सिमिलर करके वी कैन से द 2 smaller triangles are similar to each other and hence by taking the ratio of sides of similar triangles, corresponding ratio of sides of similar triangles, we can get the value of AP as 8 centimeter. Thank you.